हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बालकृष्ण वर्मा और हम आए हैं ऑर्डिनेट डेवलपर्स के पास। दोस्तों, ऑर्डिनेट डेवलपर्स जिन्होंने जो भी डेवलपमेंट किया, जो भी प्रॉपर्टीज बनाई है, वो एक लैंडमार्क बन गई है। तो एक और अपकमिंग लैंडमार्क ऑर्डिनेट सेरेनिटी में हम आए हुए हैं और हम यहाँ मिलेंगे यहाँ के सेल्स हेड मिस्टर अमूल जी से। तो अमूल जी से मिलकर हम प्रॉपर्टी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। काफी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पता लगने वाला है। तो प्लीज कम इन विथ मी एंड विल डिस्कस विद अमूल जी। हेलो अमोल जी, कैसे हेलो। हो? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बस 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 बस। वेलकम टू ऑल। थैंक यू सर। तो अमोल जी, मुझे प्रॉपर्टी के बारे में मेरे दर्शकों को कुछ बताना था, तो प्लीज कैन यू हेल्प? डेफिनेटली, व्हाई नॉट, श्योर। प्लीज चलो। प्लीज। So Amulji, from long back, I'm getting a request from the viewers that we should have one video on Ornet. On the basis of that request, actually we came here. So would you like to explain something about the Ornet? Definitely. Viewers, my name is Amul Maru, and in fact, I have been associated with Ornet since quite a long time now, and I have been taking care of Ornet since multiple projects, and I am taking care of the sales part. Okay. So talking about history of Ornet, so we have done multiple projects of Ornet. Currently, if you see, we have recently delivered a project in Madhuban, Vasai East. Okay, there are 3 towers, and it's basically a near position project wherein there are 3 towers wherein 2 are of 18 floors and the third tower is of 23 floors. And talking about project we have done at Goregaon West as well. We have done at Kandivli, Mahavir Nagar also. We have already delivered a project in Naigaon, which is Ornate Galaxy, which is a 14-floor project. And we have delivered a project in Navi Mumbai itself, then Nala Sopara. So talking about Ornate, Ornate is a brand right now. Okay, and we'll be talking more in detail about the new project, which is Ornate Serenity. Actually, exactly. So everybody wants to know about the new landmark of Ornet, new landmark of we can say Naigaon. Okay. So we want to know about Ornet Serenity. Definitely. So I guess your viewers are pretty much excited about the new upcoming project, which is Ornate Serenity. So I'll give you the detail about Ornate Serenity as well, and the reason why people are so much excited about the Ornate Serenity. I'll give you Exactly, it's the the tallest exactly. building. It's Okay, okay. so Everybody's talking about the tallest tower, tallest exactly. tower. So Yeah. if you say in Naigaon, there's I mean maximum you can say 20 to 23 floor story buildings. But if you talk about Ornate Serenity, which is the upcoming project of Ornate, is one of the tallest tower in Naigaon. In fact, not in Naigaon, in Vasai itself. So we'll talk more about Ornate Serenity in detail. I'll give you more details as well. So actually, we were more excited to know about the amenities. Actually, everybody was talking about the amenities that you are giving 50 plus Absolutely. world class amenities. That's absolutely right. So if you see, बेसिकली कैसा है मालूम है, हम लोग ने जो ऑलरेडी हमारे मुंबई साइड में जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड किए हैं अभी तक, वो भी सारे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। Okay. सो वही सब सब फैसिलिटी जो हमने मुंबई में ली है, सारे लैंडमार्क बन चुके हैं. एग्जैक्टली सारे लैंडमार्क बन चुके एग्जैक्टली। हैं. सो इफ यू से देखो, कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो प्रोजेक्ट है अभी तक का सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट है नायगांव में। और इन्वेस्टर पर्पस के बारे में अगर मैं बात करूँ ना आपको, तो ये सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। रीजन कनेक्टिविटी। देखो क्या होता है मालूम है, इन्वेस्टर 2-3 चीजें देखते हैं। सबसे पहले कनेक्टिविटी। गाइस, जो कोई भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो प्रॉपर्टी में, प्लीज आप एक बार देखिएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर इस प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है नायगांव के अंदर। सो प्लीज आप इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट है, आप इसमें एक बार जरूर डिटेल में वीडियो देखिए। श्योर। सो अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँ ना, तो सबसे पहले इन्वेस्टर लोग का माइंडसेट क्या होता है, उनका सबसे माइंडसेट ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उनका कनेक्टिविटी कैसा है। सो ये जो प्रोजेक्ट है सबसे मतलब सेंटर में, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। रीजन यहाँ से ना 900 मीटर्स की दूरी पे आपको वेस्टर्न रेलवे का
सेटअप मिलता है। क्या बात है। हाँ, तो आपको मुंबई से कनेक्टिविटी वो सबसे बेस्ट है। हम्म, देन अगर सेंट्रल लाइन की बात करूँ तो यहाँ से 900 मीटर्स की दूरी पे जू चंद्र रेलवे स्टेशन है, जो कनेक्ट होता है आपका वसई से लेके दीवा तक। लेस देन 1 किलोमीटर। एब्सोल्युटली राइट। व्हाट अबाउट Plus, हाईवे, व्हाट अबाउट हाईवे? so Western Express Highway is hardly 3.5 kilometers from our project, क्या which बात is है। the best part. ओह। दूसरी चीज बच्चों के लिए स्कूल, राइट, स्कूल कॉलेजेस, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया स्कूल है डॉन बॉस्को, जो यहाँ का सबसे पुराना स्कूल है और कॉन्वेंट स्कूल है। देन 7 स्क्वायर स्कूल है, ठीक है, जो यहाँ से हार्डली 2 to 3 मिनट्स के दूरी पे है। मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा जो यहाँ पे स्कूल था डॉन बॉस्को। डॉन बॉस्को, तो ये एरिया पहले डॉन बॉस्को के नाम पे फेमस था, आज लोग इस एरिया को ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। एब्सोल्युटली राइट। सो आप इम्पैक्ट देख सकते हो बिल्डर का, आप डेवलपर का इम्पैक्ट देख सकते हो, और जो नया लैंडमार्क आने वाला है अमेजिंग है गाइस, अमेजिंग है। एब्सोल्युटली। प्लीज प्लीज अमोल जी हमें एमिनिटीज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना। Sure. पहले इन्वेस्टमेंट पर्पस हम क्लियर कर लेते हैं। सो जैसे मैं कहा था स्कूल के बारे में, तो यहाँ पे अच्छे से अच्छे स्कूल्स है, जैसे डॉन बॉस्को यहाँ का सबसे पुराना स्कूल है और कॉन्वेंट स्कूल है। देन रश्मि इंटरनेशनल है। देन नियर बाय में हमारा 7 स्क्वायर है, ठीक है। देन हमारा ठाकुर स्कूल भी यहाँ पे आ चुका है। तो स्कूल के बारे में अगर जानना चाहोगे तो यहाँ पे अच्छे से अच्छे स्कूल है। महाराष्ट्र बोर्ड से लेके सीबीएसई बोर्ड्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। सेकेंड कनेक्टिविटी में अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पे नियर बाय मार्केट भी है आपको, ठीक है। देन बिग बाजार भी है यहाँ पे, डी मार्ट भी है, ठीक है। फिर रिलायंस डिजिटल भी है यहाँ पे। प्लस पॉइंट ये है, प्लस अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स भी है यहाँ पे नियर बाय में हमारे प्रोजेक्ट से कनेक्टेड। सो कनेक्टिविटी में अगर और इन्वेस्टर पर्पस के लिए अगर आप देख रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है मालूम है, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये नायगांव जो है ना, इनफैक्ट राइट नाउ इज अ वेरी डेवलपिंग एरिया, इट्स नॉट ऑलरेडी डेवलप्ड। तो ये इन्वेस्टर लोग के लिए सबसे बड़ा बड़ा पॉइंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर ऐसे जगह पे पैसे डालते हैं जहां पे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। अमोल जी, ऑन द बेसिस ऑफ जो एग्जिस्टिंग जो हमने बनाया हुआ है, ऑलरेडी हमने जो डिलीवर किए हैं करेक्ट, उनके बेसिस पे मुझे कुछ हमारे दर्शकों को रिटर्न्स बता सकते हो कि क्या सो expect कर सकते हैं यहाँ अगर मैं कहूँ ना आपको, तो हमारा जो एक प्रोजेक्ट है ऑर्नेट गैलेक्सी, जो बराबर ये हमारे सेल्स ऑफिस के पीछे ही है, जो 7 साल पहले डिलीवर हो चुका है। ओके। और वो नायगांव विसिनिटी में अभी तक का सबसे टॉलेस्ट टावर था, जो 14 माले का था। इनफैक्ट ऑर्नेट ने जब 14 माले का टावर लाया, उसके बाद सब लोगों ने, यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स लोगों ने बड़े बड़े टावर्स लाना शुरू किया। सर कोई कंपटीशन नहीं है। एग्जैक्टली। कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये यहाँ का सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट है। और ये जो ऑर्नेट सेरेनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे एम्यूनिटीज हमने दी है, वो सेम एम्यूनिटीज हमने हमारे मुंबई प्रोजेक्ट्स में दी। तो आप लोग अगर शो फ्लैट देखोगे तो आपको सब डिटेल में पता चल जाएगा क्वालिटी के बारे में। जो नायगांव में दूसरे कोई कॉम्पिटिटर बिल्डर्स नहीं देते, वो हम देते हैं। और एम्यूनिटीज के बारे में बात करूं तो एम्यूनिटीज हमने इतनी वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज दी है, जैसे हमने स्विमिंग पूल जो 31st फ्लोर पे है, जो यहाँ पे कोई बिल्डर नहीं देता। दूसरी चीज, मिनी थिएटर, 25 सीटर का मिनी थिएटर दिया है हमने। क्या बात है। एग्जैक्टली, वो भी 31st फ्लोर पे। जकूजी दिया है स्विमिंग पूल के पीछे। जकूजी, एब्सोल्युटली राइट, आपने सही सुना, जकूजी। ये भी होता है यहाँ पर? यस, जो यहाँ पे कोई दूसरा बिल्डर नहीं देता है, कोई सोचता भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो हमने देखो कैसे इमेजिनेशन जो दिया है ना, वो हम लोगों ने करके दिखाया, ठीक है। अब दूसरी चीज, अभी स्विमिंग पूल के बारे में जो बता रहा हूँ ना आपको, 31st फ्लोर पे इसलिए दिया है, वो पूरा क्लोज स्विमिंग पूल रहेगा ग्लास फसाड के साथ। रीजन, अभी इसमें क्या होता है मालूम, दो चीजें होती है। अगर आप ओपन स्विमिंग पूल बनाते हो तो स्विमिंग पूल में क्या होता है मालूम है, धूल मिट्टी गिरती है, का चांस होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है आपका। Exactly. उसको एवरी वीक आपको धोना पड़ता है, पानी चेंज करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। हम लोग ने इस वजह से स्विमिंग पूल को 31st फ्लोर पे रखा है, ताकि धूल मिट्टी ना आए और प्राइवेसी भी मिले। मुझे ऐसा लगा एग्जैक्टली उसी में आया, बिकॉज जो गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, वो ओपन तो नहीं, वो इनफैक्ट वो लोग को थोड़ा मतलब दे फील शाय यूजिंग द ओपन स्विमिंग पूल, wherein they need privacy, which is why we have given swimming pool on 31st floor with closed glass facade, wherein see through glass भी नहीं है, बाहर के लोग अंदर का नहीं देख सकते। इनफैक्ट अंदर के सर वैसे कुछ नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली। और अगेन बच्चों के लिए कुछ अलग है पार्टीशन। हाँ, तो हम लोग ने किड्स एक्टिविटी एरिया दिया है वहाँ पे, फिर हम लोग ने मल्टीपर्पज गेमिंग कोर्ट दिया है, टॉडलर्स एरिया दिया है। सो एज इट इज, अभी क्या होता है मालूम है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं,
तो किड को संभालने के लिए हम लोग ने टॉडलर एरिया दिया है जहाँ पे नैनी भी प्रोवाइड की है। तो वो बच्चों का ध्यान भी रखता है। एंड व्हाट अबाउट द पार्किंग? पार्किंग में 50 स्टैक पार्किंग्स है हमारे पास, ठीक है, विच इज सेलेबल, एंड 200 प्लस इज द ओपन पार्किंग, विच इज द बेस्ट पार्ट। एग्जैक्टली। सो मैं एंड कंज्यूमर की बात करूं, अगर कोई अगर यहाँ पे शिफ्ट होना चाहता है फैमिली के साथ में, तो ये सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट है। देखो यहाँ पे आपको एक तो सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, प्राइवेसी भी मिलता है, बच्चों को बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? घर के दरवाजे से सिर्फ लिफ्ट में बटन दबाना है, 31st फ्लोर पहुंचना है, 32nd फ्लोर पहुंचना है, गेट के बाहर जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सारी की सारी एम्यूनिटीज हमने बिल्डिंग में ही दे दी। ओके। तो आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं कि हमारा बच्चा कहीं बाहर तो नहीं गया। सभी जगह पे आपको सीसीटीवी कैमरास मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब प्लस पॉइंट है। प्लस वेरिएंट की बारे में बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे 1 BHK अवेलेबल है, 2 BHK अवेलेबल है और 3 BHK अवेलेबल है। ओके, तीनों वेरिएंट्स अवेलेबल है।